Once again, good morning, all of you. Up to last lecture, we discussed different types of isomers. Even we discussed what are the different types of isomers. Isomerism. We discussed structural isomers, and I told you stereoisomers we will be discussing in the upcoming chapters. Okay, so I don't want to discuss it now, and I don't want to confuse you also. Okay. So, theoretical basis of organic reaction. Everybody, सब लोग जाग रहे हैं अभी? जो लोग अभी भी एब्सेंट है जगाओ यार उनको. So, all the organic molecules primarily contains various types of covalent bond between the constituent atoms. During an organic reaction, molecules of the reactants undergo change in their reaction. ये पता है, वो कोई भी रिएक्शन रहे, मतलब वो ऑर्गेनिक वाला रिएक्शन या इनऑर्गेनिक वाला रिएक्शन, always there is a rearrangement, reshuffling of atoms take place, reshuffling of structures takes place. A covalent bond at a carbon atom in the reactant is broken and new covalent bond is formed at it, giving rise to product. Often, this change is brought about by means of another reactant. The reactant that provides carbon to the new bond is called as substrate. The reactant that provides carbon to the new bond is called as substrate. And the other reactant which brings about this change is called as reagent. Okay, क्या है definition substrate का? The reactant मतलब क्या है कि ऐसा कोई तो एक मॉलिक्यूल है जिसका जिसमें से हम लोग बॉन्ड ब्रेक करते हैं. So ये सब्सटेंस प्रोवाइड अ मॉलिक्यूल टू ब्रेक द बॉन्ड. इसमें से बॉन्ड ब्रेक करो. So that is called as what? Substrate. और जिसकी वजह से ये ब्रेकिंग होता है that is called as reagent. Everybody? Yes. Okay. So एक काम करो ना, ये डेफिनेशन लिखो सबस्ट्रेट का. क्या है? The reactant that provides carbon to the new bond is called as substrate. अदर नहीं लिखते. The reagent which brings about this change. What do you mean by this change? The reagent which brings about the breaking of covalent bond is called as reagent. Both the reactants provide carbon atoms to a new bond. The reactants considered as substrate. Apart from the product of the entry, some other products are also formed, which are called as byproducts. Okay, इससे भी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है. Methane CH4 react with chlorine in presence of sunlight, uses CH3Cl and HCl. तो CH4 में से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, so it is called as substrate. कौन ब्रेक कर रहा है? क्लोरीन. so it is called as reagent. उससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, so ये प्रोडक्ट हो गया, उसके साथ ये प्रोडक्ट मिल रहा है, that is called as a byproduct. Covalent bonds are made of valency electrons of the constituent atom. Redistribution of valence electrons of a constituent atom result in a bond breaking and bond forming. मतलब इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इसमें बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ठीक है? Which usually not
इंस्टैंटेनियस, जैसे आयोनिक रिएक्शन होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो या प्रेसिपिटेशन हो, वैसे यहाँ पे फास्ट रिएक्शन नहीं है. As a result, the overall organic reaction is punctuated by formation of one or more unstable species called as intermediate. Intermediate का मतलब ये है, ये reactants है, ये products है, इसके बीच में एक कुछ तो hidden चीज होती है. मतलब all these reactions are moving reactant to product through, मतलब ऐसा होता है ना, अगर मुझे चांद पे जाना है तो फ्रॉम अर्थ टू मून देयर इज वन, एक बीच में ना एक स्पेस, मतलब एक स्पेस आता है, स्पेस स्टेशन, जहां पे रुका जा सकता है. नाउ दैट स्पेस स्टेशन इज कंसिडर्ड टू बी अनस्टेबल. जैसे यहाँ पे है कि रिएक्टेड और प्रोडक्ट के बीच में एक अनस्टेबल अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, अनस्टेबल स्पीशीज बनता है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरमीडिएट. Overall, the organic reactions are often multi-steps. So, a sequential account of the electron movement taking place during each step, the bond cleavage and bond formation, accompanying the change in energy and shape of various species, and rate of the overall reaction. So, what are the four things responsible for reaction? ये चार रिएक्शन, चार है. क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन ये है, व्हाट आर ऐसे लिख सकते हैं. What are the steps involved in any organic reaction? Okay, so पहला है the electron movement taking place during each step. Second, the bond cleavage, मतलब bond breaking and or bond formation, accompanying the changes in energy and shapes of various species. Steps नहीं बोल सकते इसको हम लोग basically. And the last one is rate of overall reaction. What accounts for any organic, तो इसको फैक्टर भी नहीं बोल सकते. मतलब ऐसा है कि अगर समझो ऑर्गेनिक रिएक्शन मुझे पढ़ना है, then these are the four. So it should be in terms of these four lines. ये चार चीजें हम लोग पूरे रिएक्शन में, मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ेंगे. The individual steps constituting the reaction mechanism. The knowledge of mechanism of a reaction is useful for understanding the reactivity of concerned organic compound and in turn helpful for planning synthetic strategy. ये में ना अथर्व प्रेजेंट आएगा. Yes. ये रिएक्शंस कैसे होते हैं? ओके, हाउ इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस? दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. अब ये मैकेनिज्म क्यों जरूरी है, एक एग्जांपल बताता हूं.
अपने बॉडी में ना ग्लूकोज होता है, बराबर, और ग्लूकोज का डाइजेशन जब होता है तो मुझे मतलब डाइजेशन इन द सेंस व्हेन इट अंडरगो ऑक्सीडेशन गिविंग यू व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, ठीक है ना। ग्लूकोज में ऐसे कुछ मतलब उसमें ना व्हाट आई कैन से दैट ग्लूकोज इज एक्चुअली फाउंड इन अ टू फॉर्म, एक होता है डेक्सट्रोज फॉर्म और दूसरा होता है लेओस फॉर्म। इनको अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, बट इन आवर बॉडी ओनली डेक्सट्रोज कैन बी ऑक्सीडाइज, ये नहीं। ये कैसे पता चला? दिस इज ऑब्जर्व बाय अ टर्म कॉल्ड एज मैकेनिज्म। मतलब ये रिएक्शन कैसे होता है? ऐसे ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं which are taking place and मतलब same reactant gives you different products, same reactant gives you, अभी जैसे यहाँ पे है ये देखो, ये फर्स्ट रिएक्शन है। अगर समझो मैंने एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिया, एक्सेस में लिया, then the product is what कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो अलग ही हो गया। जो मिथाइल क्लोराइड मिलना चाहिए वो क्या मिला? कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला। ऐसा क्यों हुआ? why is this, why here ऐसा क्यों मिला? और भी कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं क्या? ये जानने के लिए ये जरूरी है। क्या जरूरी है? मैकेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिक का ये क्रूशियल पार्ट है, क्रूशियल पार्ट। मतलब जो लोग एडवांस वगैरह पढ़ते हैं या एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट, ओके, दोज आर प्लानिंग टू डू अ करियर इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली, तो उनके लिए ये important concept है। Rather for those people who are studying organic chemistry, मतलब तुम लोग जैसे लोग, हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते समय, जैसे 10th स्टैंडर्ड में था ये रिएक्शन है इसका रट लो, अभी बहुत सारे रिएक्शन है। मैं बताऊं 11th और 12th मिला के अराउंड अराउंड 2 या 3 हजार रिएक्शन है, और उन सब रिएक्शंस को तुम लोग रटते बैठोगे तो वो नहीं हो। तो उसके लिए कुछ टेक्निक है, तो उसमें से एक टेक्निक है अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म। एक मिनट, मतलब ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ओके, ये फर्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक में एक अच्छा है कि कुछ इंटरमीडिएट फिक्स होते हैं। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे रीजंस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एंड कंपाउंड। तो ये चार चीजें, एंड लास्ट वन दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ेंगे, ओके, ओनली डेफिनेशंस पढ़ेंगे और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। So let us start with breaking of bond. So what do you mean by bond breaking? Breaking of bond. Bond टूट गया. So whenever the reaction is taking place,
It is because of bond breaking and bond making. Okay. So mainly we have two types of breaking in organic chemistry. Okay. Organic में दो type का breaking होता है. One is called as homolytic fission. इसको fission भी बोलते हैं. Fission of bond. इसमें दो टाइप होते हैं. एक होता है होमोलिटिक फिशन. होमोलिटिक फिशन और होमोलाइसिस. देन हेट्रोलिटिक फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन और हेटेरोलाइसिस. homolytic fission and heterolytic fission. The name itself suggests homolytic मतलब यहाँ पे क्या समझो, ये एक बॉन्ड है. Now this a bond consists of two electrons. When there is a symmetrical breaking of bond, सीधा एरो कैसे हाफ एरो दिखा है, तो इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो में से एक इलेक्ट्रॉन किसने लिया, ए ने लिया, और एक इलेक्ट्रॉन किसने लिया, बी ने लिया. So symmetrical breaking of bond leads to A और B. यहाँ पे लिखता हूं मैं symmetrical breaking of bond. अच्छा, symmetrical breaking की वजह से हुआ क्या? Because of symmetrical breaking, there is a formation of chargeless species. चार्ज नहीं इनके ऊपर, एटम्स ही है ना ये. सो यहाँ पे लिखता हूं मैं फॉर्मेशन ऑफ chargeless species, chargeless species, which are called as namely free radicals. बोलते इसको हम लोग free radicals, namely free radicals. Now ये कब होता है? What are the conditions for homolytic fission? The condition for homolytic fission is generally in presence of light. क्या होता है? In presence of light. So light मतलब sunlight, UV light बोल सकते हैं हम लोग. इसलिए इसको ऐसे लिखता हूं मैं h nu. You know h nu, photon. Okay, h stand for Planck's constant, nu stand for frequency of radiation. So in presence of light or at high temperature, very high temperature. So homolytic fission कब होता है? Generally in presence of light. Generally in presence of light or at very high temperature. homolytic fission हो गया है कि नहीं? अच्छा, अभी हेट्रोलिटिक फिशन कैसे होगा? हेट्रोलिटिक फिशन और हेटेरोलाइसिस. समझो यहां पे मैं ले रहा हूं XY. अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड मतलब इसमें से एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, बिकॉज ऑफ रिएक्शन कंडीशन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये एक एटम ले लेगा. देखो एरो कैसे लिखा है, सेंटर में से एरो दिखाया, पूरा एरो पूरा. यहाँ पे देखो सेंटर में से नहीं है, हाफ एरो है. ओके,
तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं ना, सो दैट फॉर्म्स व्हाट, एनायन। अभी एक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, एक्स प्लस हो गया। सो दिस इज नथिंग बट unsymmetrical breaking of bond, unsymmetrical breaking of bond, ठीक है। formation of charged species, namely carbocation, carbon carrying charge, or carbanion, carbon carrying negative charge. This is taking place in presence of polar solvent. In presence of polar solvent. In presence of acids or alkalis, etc. Okay, please note down this. चलो, now let us go further. Types of, हो गया ना, सबका लिख के हो गया ना ये पार्ट? Anybody is lacking? Hello? Okay, now अभी जाते हैं हम लोग. Good, very good. Types of reagent. देखो heading, types of reagent. उसमें फर्स्ट है न्यूक्लियोफाइल. The first thing which we are going to discuss is what? Nucleophile. A reactant or a species which provide a pair of electrons to form a new covalent bond. A species which provide a pair of electrons to form a new covalent bond. इसका मतलब these are the species which have a tendency to donate electron pair, है ना? तो मैं उनको क्या बोल सकता हूं? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज. ओके, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज. ठीक है, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज. और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, और इलेक्ट्रॉन रिच species which are donating electron pair to electron deficient center.
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. ओके, ठीक है. सर एग्जाम्पल क्या है? पहले एग्जाम्पल बताता हूँ. एग्जाम्पल से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब अभी फिलहाल तो इसको याद रखना. एक चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसमें हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. नोट नोट what is note? If electron pair is donated or if a species is donating electron pair to H plus ion, then it is known as base. Acid base वाला base. It is known as base. ओके, तो यहां पे क्लियर डिस्टिंग्विश हम लोगों ने कर दिया. जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल. और अगर वो H प्लस को दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे बेस. क्या फर्क है पढ़ेंगे, वही हम लोग को पढ़ना है. यहाँ पे क्या फर्क है, डिस्टिंग्विश क्या है. ओके, नाउ समझ में आया सबको इलेक्ट्रोफाइल वगैरह क्या है वो? यस. अभी हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, तो एग्जांपल से हम लोग को पता चलेगा कि व्हाट मतलब क्या बोलना चाहता हूं. फर्स्ट थिंग एग्जांपल में ऑल एनायंस, तो जितने भी एनायंस है OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, NH2 माइनस एंड सो ऑन, RO माइनस मतलब अल्कोक्साइड बोलते हैं एटसेट्रा. जितने भी एनायंस है वो सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है. ओके, नाउ there are certain species which do not have a negative charge but having extra lone pair. Okay, so neutral species. देखो H2O, oxygen carries lone pair of electron. NH3, nitrogen carries lone pair of electron. Amines, समझो RNH2, नाइट्रोजन कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अल्कोहल ROH, ये देखो ऑक्सीजन कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सो. अंडरस्टूड? ये लिखो पहले. सो न्यूक्लियोफाइल्स में जरा इधर देखो. सो नेगेटिवली चार्ज भी देखो जरा, which attacks on a positive side, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग. फाइल मतलब लव. Nucleophiles may be negatively charged ions or possesses lone pair of electron. Negatively charged ions देखो H plus, H minus, OH minus, ये बहुत सारे हैं, सब याद रखने की जरूरत नहीं. और लुईस बेसिस मतलब these are the electron rich species which have lone pair of electrons. Okay, and there are some nucleophile
जिसको बोलते हैं हम लोग एम्बीडेंट। एम्बीडेंट मतलब वहां पे दो डोनर एटम्स होते हैं, बट देते समय वो एक ही एटम से देते हैं। जैसे ये देखो KNO2। KNO2 जब होता है ना तो ऑक्सीजन से भी डोनेट होता है और नाइट्रोजन से भी डोनेट होता है। NH2OH नाइट्रोजन से भी दे सकता है OH। KCN ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं तीसरा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट, एम्बीडेंट मतलब टू डोनर एटम्स, two donor atoms in a species. Example ये देखो Cn माइनस। तो Cn माइनस में the electrons are present on carbon as well as on nitrogen. अच्छा, साइमल्टेनियसली वो दोनों से नहीं देगा, आइदर और, आइदर कार्बन से और नाइट्रोजन से, और O N डबल बॉन्ड O। तो ये जो होता है दिस इज NO2 माइनस, तो ये ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से दे सकता है। ओके उसके बाद SCN माइनस थायोसाइनेट, सो सल्फर से दे सकता है या नाइट्रोजन से दिया जा सकता है। ये भी ऐड कर देना उसमें जरा प्लीज। आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या बोलेंगे इसको हम अभी? इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ रहेगा, फाइल मतलब क्या हो गया? लव। सो I'll say electron rich species. Electron rich species. Okay. Oh, I'm sorry. I made a mistake. Electron deficient species. Electron deficient species. Okay. Or these species have tendency to accept electrons from nucleophiles। न्यूक्लियोफाइल, और अगर वो H प्लस है तो वो क्या हो गया? एसिड हो गया। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और दीज आर द स्पीशीज व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मतलब इसका इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। ओके, अभी इसमें एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। लेट अस गो फॉर द एग्जांपल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स, एक तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, है कि नहीं? व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। नाउ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स में एग्जांपल्स है H प्लस, SO3H प्लस, NO प्लस, NO2 प्लस, बहुत सारे एग्जांपल्स है। ओके, हियर आई एम राइटिंग H plus, then SO3H plus, NO plus, NO2 plus, okay, then Cl मतलब X plus, हैलोजेंस बोलते हैं उसको, ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। X plus, after that CH3, C double bond O plus, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज। Now there are certain species which are neutral, okay, which are neutral, but they have a tendency to accept lone pair of electron.
उनको बोलते हैं लुईस एसिड्स। ओके, एग्जांपल देखो, मैं बताता हूँ कैसे। Those species which have an incomplete octet, देखो BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रक्चर ऐसे होगा, हर एक का नहीं ड्रॉ करूंगा मैं। तो इफ यू ऑब्जर्व, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? एंड देयरफॉर to complete its octet they can accept lone pair of electron, they are called as what? Lewis acid. So ये BF3 का स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, वैसे ही देखो AlCl3, BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, और SO3 SnCl2 BeCl2 SO3 ZnCl2 zinc chloride BeCl2 beryllium chloride BeCl2 etc. ये क्या है? न्यूट्रल स्पीशीज है। नाउ न्यूट्रल एटम्स दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट, मतलब एटम। हाँ, जैसे ये देखो, और एक एग्जांपल है C डबल बॉन्ड O। तो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेक्टर है। RMgX पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। ये भी मैग्नीशियम है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेगा, है ना। उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये देखो ये कार्बन बनेगा, ठीक है, एटसेट्रा। मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, नाउ there are certain species where they carries positive charge but they cannot accept lone pair of electron. Okay, note लिखना है, note यहाँ पे। species which carries positive charge but do not act as electrophile। ऐसा भी होता है सर? यस यस। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? उसने इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए, अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं ना। जैसे ये देखो H3O प्लस, जस्ट लुक एट हियर, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। नाउ जस्ट लुक एट इन हाइड्रोनियम आयन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऑक्सीजन में वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है ना। दूसरा एग्जांपल देखो, NH4 प्लस अमोनियम आयन, मतलब इसमें पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, मतलब पॉजिटिव चार्ज है बट वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्लीज नोट डाउन दिस। चलो, लेट अस मूव अहेड नाउ। अभी हम लोग देखते हैं, अच्छा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स? Electrophiles accept the electron pair, nucleophile supplies the electron. Electrophiles are electron deficient, nucleophiles are electron rich. Electrophile attacks the point of high electron density, nucleophile attacks the point of low electron density. Electrophiles are Lewis acid, ये क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे, just hang on there. Nucleophiles are Lewis bases. Electrophile possess
an empty orbiter to receive the electron pair. Nucleophile possess an electron pair which is loosely held and can be supplied easily. Electrophile usually positively charged, nucleophile usually negative charged. Electrophile forms an extra bond with the nucleophile. Nucleophile increases its covalency by 1 unit. Is that clear? ये है distinguish between electrophile. देखते हैं ये आता है. I need to check it. Yes. अगर आ गया तो ये अपने स्लाइड बन जाएगा. नहीं आएगा. ठीक है. तो ये है, लिख लो, ये लिख लो. एक मिनट है, मैं बताता हूँ क्या लिखना है. नोट डाउन दिस पॉइंट, दिस पॉइंट. क्या है? डिस्टिंग्विश. ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग. एग्जांपल्स है क्या? देयर आर एग्जांपल्स. टेक्स्ट बुक में अपने एग्जांपल्स दिए. हाँ, चलो ये करो, बताओ मुझे क्या लिखना है. टाइप्स ऑफ क्लीवेज. अच्छा, इंटरमीडिएट वाला पार्ट मत लिखना. हाँ, लिख सकते हैं ना हम लोग. कार्बोकटायन, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकटायन लिखेंगे. कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन आयन लिखेंगे. जैसे अभी इधर ये एग्जांपल देखो. ये एग्जांपल में, पहले वाले एग्जांपल में क्या हो गया है? कैसे ब्रेकिंग हो गया? हेट्रोलिटिक ना. Cu प्लस मतलब दिख रहा है ना यहाँ पे, और CH3 माइनस, कार्बन आयन मिला मुझे. तो कार्बन का स्पीशीज लिखना है. ओके. अगर वहां पे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग है तो लिखना है होमोलिटिक फिशन, मतलब होमोलाइसिस. चलो करो, टेक नोट करो अपने, और पुट इट इन द चैट. कम ऑन फास्ट. होमोलिटिक फिशन क्या है, हेट्रोलिटिक फिशन क्या है? समझ में आया ना होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक? यस एवरीबॉडी. होमोलिटिक फिशन क्या है, हेट्रोलिटिक फिशन क्या है, समझ में आ रहा है क्या? मैं ही बोल रहा हूँ आज अकेले. श्रुति, जानवी, कैन यू हियर मी? आर्या, हेलो आर्या. ओके, सो प्लीज डू इट नाउ. इसको नंबर डालना. ये तो 1 तो हो गया, बट लिखना भी 1 2 3 4 5. डू इट फास्ट. यस विधि, करेक्ट. बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे. योगिता, वेदिका, वेदिका. Yes, sir. आंसर. रोहन, वैष्णवी, समजलं नाही का? पांडुलस्कर साहेब, पांडुलस्कर, नवलकर आणि पाटील. पाटील, गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. सांग आंसर. No. See how, Vatsal, how is the breaking take place? Anyway, if you see the product, you will have one cation and one anion, which is neutralizing the charge. Right? Yes, sir. So no problem. अमी थर्ड वाला चेक करना. Sir, so it should be free radical. No, it is not a free radical. Free radical is chargeless. उसके ऊपर चार्ज नहीं होता.
चलो मैं बता देता हूं, चलो ध्यान दो इधर, जिन लोग प्रतीक नहीं समझ लगा, अरे पाटील काय झालं, पुढे जातोय. So there's So in this case if you see the species ना, यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, मतलब ये कैसे हो गया मालूम है, ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने रखा और ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ने रखा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, होमोलाइसिस. और जब भी होमोलाइसिस होता है तो क्या मिलता है, फ्री रेडिकल. इधर देखो, इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बट ये कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर इज टेकन अप बाय दिस कार्बन to CH2 minus. This is called as what, heterolysis, and there is a formation of what, carbon ion, है ना, नेगेटिवली चार्ज. इधर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस, अच्छा इसमें उल्टा हो गया, ये ब्रेकिंग ऐसे हो गया, ये भी हेटेरोलाइसिस है. What is the charge on carbon? Positive. Therefore, this is called as carbocation. अभी इधर देखो, ये भी ऐसे ही हो गया. What is the charge on alkyl carbon? Alkyl carbon ये है ना, वो स्पीशीज हम लोग कंसिडर करेंगे. ओके, ये भी हेटेरोलाइसिस है, और यहाँ पे भी क्या मिला, कार्बोकटायन मिला. तो जिन लोगों का गलत है, जिन लोगों ने नहीं लिखा, लिख लो जरा फटाफट. नेक्स्ट वन, अभी देखो आगे. हाँ, ये क्वेश्चन है, बोलो ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट CH3COCl सबस्ट्रेट, NH3 is what, reagent, CH3CONH2 क्या हो गया, प्रोडक्ट, और HCl क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट. ओके, now identify the nucleophile and electrophile from NH3 and CH3 plus. Also indicate the nucleophile and electrophilic center in them. Justify. ओके, अभी ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं. इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग आना जरूरी है, बिकॉज विदाउट केमिकल बॉन्डिंग यू कैन नॉट जस्टिफाई, रिमेंबर दैट. तो क्वेश्चन है अपना, दिस इज अ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल and electrophile from NH3 and CH3 plus. Also indicate the nucleophile electrophilic center in them. ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको. पहले NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. NH3 का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 हाइड्रोजन हो गए, एंड स्टिल 1 2 3, स्टिल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिमेनिंग. इसका मतलब नाइट्रोजन कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया. एंड ये जो नाइट्रोजन है दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. ठीक है, अच्छा CH3 प्लस, लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर. इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3. इसमें कार्बन लिखता हूं मैं ऐसे, बराबर है, और एक रहेगा पॉजिटिव चार्ज, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, पॉजिटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इसलिए ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल. And this carbon which accepts electron called as electrophilic center. Electrophilic center. Note down this. Chalo, let us go for the
नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सबने लिखा है ना ये? हेलो, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, अभी ये अपने टेक्स्ट बुक में उन्होंने मेंशन नहीं किया है, सो दिस इज सम एडिशनल पार्ट विच आई थिंक इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। वन इज कॉल्ड एज पोलर सॉल्वेंट। The word polar stand for, इसका डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा। याद करो, डाइपोल मोमेंट, केमिकल बॉन्डिंग। और दूसरा रहेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। जब मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करता हूं तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। Polar solvents are of two type. Polar solvents are of two type. एक है polar protic solvent, polar protic solvent, polar protic, ऐसा भी होता है सर? यस। और दूसरा है polar aprotic solvent, polar aprotic solvent। Now, what do you mean by polar protic solvent? These solvent furnishes or furnish H plus ion, give H plus ion, okay, or containing H plus ion, और ये है polar aprotic solvent, do not contain H plus, furnishable H plus ion, furnishable मतलब देने वाला, easily donate करने वाला, ओके। ये बोलना डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे फर्निश H प्लस आयन, यहाँ पे H प्लस आयन नहीं दिए जाते। कंटेन्स H प्लस आयन मतलब कि कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटॉन दिखता है बट वो प्रोटॉन देते नहीं। फर्निश H प्लस आयन, ओके। एग्जाम्पल देखो, H2O है ना, प्रोटॉन दिया जा सकता है। अल्कोहल ROH, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH। फिनॉल, ओके, C6H5OH, ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन देते ही, ओके। ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड्स, HCl, H2SO4, HCl, H2SO4, मतलब ये भी सॉल्वेंट करके हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक्वियस सॉल्यूशन ही जनरली उनका यूज होता है। वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट, मतलब तुम लोग जितने भी देखोगे ना, वाटर इज कंसिडर एज द बेस्ट सॉल्वेंट। अभी नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या, ये पोलर प्रोटिक हो गया। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ये देखो CH3 का एग्जांपल यहाँ पे सेट करता हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटोन। यू नो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन भी किधर जाएंगे? याद है ना, sp2 हाइब्रिडाइज, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर्स आर मोर देन परसेंटेज ऑफ sp3, इसलिए sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड, पोलर, ओके। हाँ ईशान, Sorry, sir, it happened by mistake. okay,
So this is nothing but delta minus and this part become delta plus. ये हो गया एक एसीटोन. उसके बाद H C double bond O N CH3 twice. इसको बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. फॉर्मामाइड DMF dimethyl formamide. Okay. Then there is one more example. CH3 S double bond O CH3 dimethyl sulfoxide. Sulfoxide DMSO. DMSO. All these are what? Polar. Polar. They are polar. ये देखो. डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस. इधर भी वही हाल है. डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस. ओके. पोलार पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइपोल मोमेंट 0 है. इस पे एग्जांपल है मिनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है नॉन पोलर. कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड. देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज टॉलुइन. नोमेनक्लेचर में पढ़ा है हम लोगों ने. ऑल दीज हैव व्हाट? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0. प्लीज नोट डाउन दिस. चलो डन हो गया लिख के. नाउ I want to read something for you from organic chemistry. Electronic effect in organic chemistry. Okay, मैं ये read कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो. We noted earlier that in a polar organic reaction, the nucleophilic center in the nucleophile attacks the electrophilic center in a substrate. Whereas the electrophilic center in an electrophile attacks the nucleophilic center in the substrate. How electrophilic or a nucleophilic center generated in the neutral substrate? मतलब अमोनिया तो न्यूट्रल है, बट वो नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, वो कैसे जनरेट हो गया? This happens because of displacement of valence electron within some organic molecule, which results in their polarization. What do you mean? What do you mean by polarization? Polarization मतलब एक जगह पे आना, concentrated at one point. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? The electrons are concentrated at one point. The displacement of valence electrons resulting in a polarization of an organic molecule is called as electronic effect. Please note down this definition. The displacement of valence electrons resulting in polarization, concentration of an organic molecule is called as electronic effect. If the electron that occurs in the ground state, the electronic effect, if it is occurring in a ground state, then it is a permanent effect. This takes place due to the influence of certain atom or substituent or certain structural features present in the molecule. So two effects which we are going to discuss, inductive effect and resonance effect, are permanent electronic effect. On the other hand, the electron displacement effect occurring in a substrate due to approach of other, that is attacking reagent, is called as a temporary effect. And
It consists of electromagnetic effect or polarizability effect. So one by one हम लोग इन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके जैसे मैंने बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो 4 इफेक्ट एक्चुअली हम लोग देखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. So 4 effects we are going to discuss. The first one is inductive effect. Okay. दूसरा इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट. ये हम लोगों ने इसमें भी पढ़ा था, इसमें केमिकल बॉन्डिंग में भी. उसका ये थोड़ा बड़ा वर्जन है, मतलब वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कुछ फर्क नहीं है, बट ऑर्गेनिक में इट हैज अ वाइड एप्लीकेशन. थर्ड है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. मतलब ये वैसे देखा जाए तो काम का है, वैसे देखा जाए तो नहीं काम का. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. एंड द लास्ट वन इज the hyperconjugation. The name itself suggests hyper, मतलब यहाँ पे हाइपर कुछ तो रहेगा. तो ये 4 इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे इन सब्सिक्वेंट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में इधर में थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट तुम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा. ओके उसके साथ साथ we discuss carbocation formation, carbanion formation, free radical formation. I will explain you how stability varies by using these effects. ये हम लोग पढ़ेंगे. We will discuss that in a next lecture. ठीक है? Thank you very much. Those have a doubt. मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, इसलिए स्लो जा रहा हूँ कि तुम लोग को ये चीजें समझ, क्योंकि इसके बाद अपना 12th स्टैंडर्ड इमीडिएटली ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा. ओके सो मतलब 12th में हम लोग घुसेंगे. अभी ये चैप्टर होने के बाद अल्केन अल्कीन अल्काइड हाइड्रोकार्बन ये एक चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का. दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके तो मतलब उसको टाइम लगेगा, इसको भी मैं टाइम दूंगा. मे बी नेक्स्ट वीक में ये पूरा पार्ट अपना खत्म हो जाएगा. ठीक है चलो थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. हैव अ नाइस डे. Happy Republic Day once again.